Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry Semester 5 lecture, which is from Unit 4 Comparative Chemistry of Group 16. So now we have a clear-cut idea about our periodic table, and we know that Group 16 element is the one which contain oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium elements in them. So this group is very important as it contain oxygen, right? And oxygen is our life. So therefore this group is also very important, and therefore we will study this topic with a lot of interest. Okay, so what is the introductory part? That this particular group 16 is called as oxygen group and it is also called as chalcogen. तो ये जो ग्रुप है इसे और क्या कहते हैं? Chalcogen. Any of these 6 chemical elements making up this group, that is 16, or we can say it is a 6A group of the periodic table. They have oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and nowadays livermorium, LV. This is also included in this particular group, right? So this is also known as oxygen family, and we should know the name chalcogens. Okay, these are actually metal which exist in the ore form of oxide and sulfides. Okay, so two very important elements, that is oxygen and sulfur, are included in this family, and even the selenium is also very important for our development of body, and it required in trace amount. Okay, so as we all know that oxygen is most abundant in all element and it makes about 47% of earth crust. जो अर्थ क्रस्ट है वो भी 47% ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सोसॉल्ट्स. ओके, न्यूट्रल ऑक्सीजन is an isotopic mixture of O16, O17 and O18. Okay, then what we all know that oxygen is very important for our respiration system and also very important for life. Oxygen is also part of water, right, which is again one more important thing. It is also required for photosynthesis, which is cycle of life, right? So these are very great importance of oxygen. Oxygen also occur as ozone, which is highly reactive and pungent gas, but it is also very important for us as it shields the surface of earth from the harmful solar UV radiation. So then we also know that oxygen is third most abundant element in the sun and most of the surface of the moon also. Okay, so this way oxygen has a large importance in our life as well as on the earth. We can also say that sulfur is also equally important because it occurs as generally H2S as a natural gas and organosulfur compound in crude oil. Okay, again selenium occur in traces, and generally main source of selenium and tellurium is from catalytic refining copper ores. Okay, so the last one, which is polonium, it is a radioactive element. It was discovered by Curie from pit plant in 1898. This was a decay product of radium. Like radium, it is also an alpha emitter. So there are near about 33 isotopes of polonium and they all are radioactive. And till there is very less information is available about the livermorium, but it is also important element which is included in group 16. Okay, so now we will just have the idea about these particular elements which have position in the periodic table. We can see here, this is shown with the blue color arrow, that is your group 16 elements. So we can say that in periodic table it is given at near about right position, and it has oxygen, selenium, sulfur, tellurium, polonium and livermorium. Okay, so this is the actual position of chalcogens in our periodic table.
So now we will discuss about the important properties of this group 16. Okay, so very first we will discuss about their electronic configuration. So just have a look for this. You can see particular element, that is oxygen, and it has atomic number 8. Okay, so in penultimate shell मतलब कौन सी, जो लास्ट है उससे थोड़ा पहले वाला, उसका अंदर वाला शेल, दैट इज कॉल्ड एज n-1 और पेनल्टीमेट शेल. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते n-1 में देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1s2. 8 है ना टोटल, तो उसमें से 2 और 6, 2 and 6. तो फर्स्ट शेल में 1s2 और दूसरा जो शेल है दैट इज 2s2 and 2p4. दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसी तरह सल्फर में है टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, सो एटॉमिक नंबर इज 16. तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 8 6, ऐसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं. 2 8 6, 2 8 6. उसमें सबसे अंदर वाले शेल में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाहर में 8, वी ऑल नो ऐसा ही जाता है ना, और फिर लास्ट वाले में देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p4. Then there will be selenium. It has 34 electron, atomic number is 34, and it has the distribution of electron is 2 8 18 6. Then tellurium, it has 52 atomic number, it has 2 8 18 18 6. This way distribution of electron. And finally there is polonium. It has 84 atomic number and its distribution of electron is 2 8 18 32 18 and 6. ओके, सो उसके जो नीचे एग्जैक्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर उस शेल में कैसा होगा वो भी दिया है. तो पोलोनियम की अगर बात करें पोलोनियम की, तो लास्ट में हम लोग देख सकते हैं, सी द लास्ट रो, 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी 1s2, 8 है तो 2s2 2p6, 18 है तो जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा उसकी कैपेसिटी ऑफ इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंगली. सो 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2s2 2p6 3d10, राइट. फिर 32 के लिए हम लोगों को 4th शेल में जाना पड़ेगा, वेयर देर इज ऑल्सो f ऑर्बिटल. तो अगर f ऑर्बिटल भी है तो उसकी कैपेसिटी टू इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज. सो इट इज़ 4s2 4p6 4d10 4f4 14. फिर उसके बाद है 5th शेल, उसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन है, सो 5s2 5p6 5d10. एंड फाइनली जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें फिर से कितना आएगा, 6s2 एंड 6p4, है ना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज़ क्लियर दैट दिस ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np4. देखो सारा जो लास्ट वाला शेल है उसमें खाली देर इज़ इंक्रीज इन द शेल नंबर 2 3 4 5 6, लेकिन आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ सेम, है ना, s2 p4. तो हम लोग जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे, 2s2 2p4, या फिर कॉमन हम लोग बोलेंगे ns2 np4. ओके, सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, they are entering in p orbital and therefore these are member of p block, है ना. ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल में आता है उससे उनका ब्लॉक डिसाइड होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप एकदम लास्ट वाला कॉलम देखो, सारे जो एंटरिंग लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है दे आर इन p ऑर्बिटल, है ना. लेट इट बी 2p 3p 5p 4p, लेकिन इट इज़ कमिंग इन p ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स. दे ऑल हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. एंड देर इज ओनली शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबल noble gas configuration. We all know that for all element to become a stable, they should have 8 electron in their outermost shell. तो यहाँ पे सबके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. यू कैन सी इन द लास्ट कॉलम देयर आर 6 6 6, ऑल हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कम है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल स्टेट हासिल करने के लिए. सो देयरफॉर दे आर क्वाइट रिएक्टिव.
दो इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी वो लोग हासिल करेंगे, है ना. सो दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड देयरफॉर दे आर वेरी रिएक्टिव. With increase in atomic number, they show regular graduation in most of their properties with some exceptions. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे उनके प्रॉपर्टी में भी इंक्रीज होगा. सो व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज दैट वी विल सी नाउ. दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. प्रॉपर्टी मतलब यही पढ़ेंगे ना हम लोग, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है देखो. पहला है एटॉमिक नंबर, वो तो हम लोगों ने देख लिया अभी 8. अगर सल्फर है तो 16, सेलेनियम है तो 34, देन टेलोरियम 52 एंड फाइनली पोलोनियम इट इज़ हैविंग 84. ओके, सो दिस वे देर इज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो उसी तरह से सेकंड वन एटॉमिक मास भी उनका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. सो पोलोनियम के पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है, दैट इज़ बट ऑब्वियस, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ देयर नोबल गैसेस. ओके, तो नोबल गैस का तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. उसके अकॉर्डिंगली इन ऑल एलिमेंट्स इन द लास्ट शेल देयर इज़, एज वी सेड, NS2 एंड NP6. उसी तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा. देन कोवैलेंट रेडियस, दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, है ना. तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें जो कोवैलेंट रेडियस है वो भी इंक्रीज हो रही है. ऑब्वियसली अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट विल हैव मोर एंड मोर साइज, है ना. यू कंसिडर इट एज अ बॉल. तो जैसे जैसे एलिमेंट एक ग्रुप में बड़े होते जाते हैं ना, एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस their size also increases and therefore covalent radius is also increasing. Ionic radius, suppose they are forming any ion, positive, negative जो भी है ना, तो ये जनरली नेगेटिव आयन ही फॉर्म करते क्योंकि they will gain the electron, right. So therefore that ionic radius is also increasing from 140, 184, 198 to 21 to 230 this way. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो निगेटिव में है और देर इज़ ओनली वन एक्सेप्शनल केस फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज़ ऑक्सीजन. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि देर इज़ डिक्रीज इन देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी स्लोली क्या हो रही है, कम हो रही है. ये ऐसा क्यों हो रहा है ट्रेंड, वो भी हम लोग आगे देखेंगे. फर्स्ट यू जस्ट हैव अ लुक अराउंड दिस टाइप ऑफ नंबर. ओके, देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी टू होल्ड और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड देमसेल्फ. तो वो भी स्लोली स्लोली फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम कम होती जा रही है ना. देन डेंसिटी. ओके, डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग. मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली. बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है ना, फ्रॉम 90 to 718, फिर 958, फिर 1260 एंड फाइनली 1235. सो दिस वे बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन केल्विन. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते. सो मोस्ट ऑफ देम आर शोइंग 2, 2 एंड 4. ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. -2, +2, +4 एंड 6. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये ऐसा ट्रेंड क्यों दिखाते हैं, वाई दिस टाइप ऑफ ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड. ओके, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, अभी हम लोगों ने जो देखे उसी के बारे में बात करेंगे. एटॉमिक साइज एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो द डेंसिटी. आप लोग यहाँ पे देखते रहो सो दैट आई कैन, वट एवर आई एम स्पीकिंग, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो इन केस ऑफ 16 group element except O2, all are solid under normal condition. So with the increase in atomic number as expected, their atomic radii, volume and density also increases, right. तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि ग्रेजुअली बढ़ रही है, that is because of normal conditions and where the property of solid show same type of things. So there is increase in atomic radii, volume and density as the atomic number increases. Then second property is
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम लोगों ने अभी अभी देखा था, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हम लोग देख सकते हैं 1314, 1000, 914, 869, 813, इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती दिखाई देती है। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो ये जो सारा ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कौन रखता है, ऑक्सीजन। देन नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर, हम लोगों को पता है कि दे आर आइदर मेटल और नॉन मेटल। सो इन दिस केस द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ नोबेल गैसेस, जस्ट लेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उनके पास और 2 इलेक्ट्रॉन होते सबके पास तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नोबेल गैस, है ना। सो देयरफॉर दे शो प्रिडोमिनेंटली नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, राइट। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। They show strong non-metallic character with oxygen, sulfur, etc. and weaker character with selenium and tellurium, etc. Okay, so radioactivity जो है किसके पास, पोलोनियम की, it is a distinct metal and it is a short lived. तो ये जो metallic character है that character is increasing and non-metallic character is decreasing from oxygen to polonium. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है कि कंडक्टिविटी मतलब इट इज़ हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन कंडक्टर्स। ओके, वो ज़्यादा हीट और इलेक्ट्रिसिटी इन देयर प्योरेस्ट स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ अ कंपाउंड देन दे कैन कैरी, ओके, लेकिन इफ इट इज़ इन देयर एलिमेंटल स्टेट और प्योरेस्ट स्टेट दे कैनॉट कैरी कंडक्टिविटी। ओके, सेलेनियम और टेलुरियम आर सेमी कंडक्टर्स। हमें तो पता है सेलेनियम जो है इट इज़ यूज्ड इन सेमी कंडक्टर कंपाउंड्स। पोलोनियम बीइंग अ मेटल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पोलोनियम जो है इट इज़ अ मेटल एंड देयरफॉर इट शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Therefore, we can say from oxygen to polonium, electrical conductivity also show a regular trend. Okay, so from insulator to semiconductor to metallic conductivity. आप एक बार ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टेबल है, पीरियोडिक टेबल, ये देख लो। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो ऊपर 2 है दे आर स्ट्रांगली नॉन मेटल्स, राइट, एंड देयरफॉर वी कैन से दे आर इंसुलेटर। वो बिल्कुल भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फिर सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो दोनों सेमी कंडक्टर है, थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड पोलोनियम इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दिस वे वी कैन से अबाउट कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रॉम oxygen to tellurium, melting and boiling point show regular increase. Okay, but for polonium the value is less than actually expected. उसकी ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी इन केस ऑफ पोलोनियम, लेकिन एक्सपेक्टेड से भी वो थोड़ी सी कम है ना, इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस वे वी कैन से दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increases as atomic number increases. Then we will discuss about their ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, दिस वे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट इज NH2 एंड NP4। हमें पता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो कितने हैं, S ऑर्बिटल में 2 और P ऑर्बिटल में 4, राइट। सो दिस वे here the oxidation state or we can say electronic configuration
of oxygen family suggests that these elements need only 2 electron to complete their stable octet. हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. सो अगर उनको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. तो सबसे पहले इजी क्या है, सबसे पहले टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, क्योंकि वो सबसे आसान है. उनके पास 6 है ना. एवरीबडी इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. यू सी द लास्ट कॉलम. तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे. तो देयर फोर दे विल ऑलवेज शो डाई निगेटिव आयन. डाई निगेटिव जिसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है. तो O2 माइनस, S2 माइनस, सेलेनियम 2 माइनस, टेलुरियम 2 माइनस, ऐसे आयन फॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डाई निगेटिव आयन स्टेट. ओके. They have high electronegativity of oxygen. All the metal oxides are ionic. ये जो एक्चुअली फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, वो सारे कैसे होंगे, आयोनिक. तो फिर ये इजी स्टेप है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. दूसरा कैसे कर सकते हैं, दे कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते किसी से, राइट, सो दे विल एक्वायर 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना. O2 माइनस ऊपर, S2 माइनस आयंस, राइट. अगर नहीं 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए तो क्या कर सकते हैं, दे कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो किसके साथ शेयर कर सकते हैं, विथ हाइड्रोजन. ओके, या फिर जनरली हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स लाइक H2O, H2S, H2Se, that is selenium. So this way they can form hydrides, or they can make bond with halogen atom, OF2, oxofluorides. Okay, this way. So these are called as binary compounds, and there they can show +2 or -2 oxidation state. Also they can acquire a particular oxidation state by forming a double bond, है ना. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले या शेयर करे. दे कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं तभी भी देर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो द एबिलिटी टू फॉर्म डबल बॉन्ड इज मोस्टली लिमिटेड टू ऑक्सीजन. हम सबको पता है ऑक्सीजन इजीली डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ना. कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने देखा है, इन एसिड, है ना, C डबल बॉन्ड OH, दिस वे. सो इट इज़ द गुड कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो विद द सल्फर इन देयर कंपाउंड विथ कार्बन लाइक COCl2 और अपना नॉर्मल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CS2. सो दिस वे दे कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड and they can show the particular oxidation state.